Welcome to English Classroom. In this video, we will learn 5 important rules of subject-verb agreement. This is the third part in the series of subject-verb agreement. Firstly, we will remember what we already learned in our previous video. So, what is subject-verb agreement? It means for making a sentence grammatically correct, a sentence must agree with its subject in number and person. It means singular subject must agree with singular verb. Plural subject must agree with plural verb. For example, Reena writes a poem. You can see Reena is here singular subject, so we use here singular verb. Next example, they write poems. They is here plural subject, then we use here plural verb. So, this is the basic rule. So, please remember this rule. Now we will learn 5 more rules of subject-verb agreement. So let's begin. Rule number 11. Uncountable nouns such as furniture, sugar, rice, equipment, etc. are considered singular subjects. We use singular form of verb. For example, the furniture in this room is new. The luggage is missing from the flight. The equipment is still on the way. You can see in these examples, all are uncountable nouns. So, we use verb according to subject. That is here singular subject agree with singular verb. According to this, furniture is uncountable noun, so we use is singular verb. Rule number 12. In sentences using pair of, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है pair of. We use singular form of verb. For example, a pair of branded shoes is quite expensive these days. इसको ध्यान से देखिए, इसमें pair of लिखा है, तो pair of के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सेंटेंस को देखना है. तो यहाँ पर सेंटेंस में अगर पेयर ऑफ आ जाता है तो हम हमेशा वहां पर सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, जैसे हमने इसमें किया है इज. इसमें हमने शूज को नहीं, पेयर ऑफ के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज करना है. अगर यहाँ पर पेयर ऑफ नहीं हो, ओमिट हो, तब कैसे आएगा? योर शूज आर ग्लोसी, सीजर्स आर ब्लंट. आप यहाँ देख सकते हैं शूज. This is plural subject. Then we use here plural verb. इसके लिए एक नोट भी लिखा है मैंने. If we omit the words pair of and merely use the plural word, it takes a plural verb. Actually ये यहाँ पर क्या है? Plural subject है. अगर इसके साथ पेयर ऑफ लग जाता है तो हम इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. अगर यहाँ पर पेयर ऑफ को ओमिट कर दिया जाता है तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. एक और एग्जाम्पल आपके लिए है. 3 pairs of shoes are missing. आप यहाँ देख सकते हैं ये पेयर ऑफ नहीं, pairs of है. इट मीन्स दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट. तो अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट व्हाट वी यूज हियर? प्लूरल verb. Let's continue. Rule number 13. Nouns plural in form but singular in meaning. ऐसे nouns की बात की जा रही है जो कि प्लूरल हैं फॉर्म में, बट इनका मीनिंग सिंगुलर है.
इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आप देखिए यहाँ पर नाउन्स लाइक न्यूज, फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, innings, billiards, annals, gallons, summons are plural by name but are considered to be singular when used in a sentence. It takes a singular verb. For example, mathematics is a difficult subject. आप यहाँ देख सकते हैं मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन ये दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे कि ये प्लूरल फॉर्म हो, मतलब प्लूरल फॉर्म नजर आ रही है, लेकिन ये है सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट इज व्हेन अ प्लूरल नाउन इज द नेम ऑफ द बुक और अ कंट्री, द टाइटल ऑफ अ बुक, प्ले, स्टोरी or a musical composition, it takes a singular verb. For example, my experiments with the truth is a good read. ये यहाँ पर बुक का टाइटल है, my experiments with the truth. ओके, तो ये यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट, a singular verb is used when a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, as single body. Okay, for example, 500 rupees is too much for this bag. आप यहाँ इसको समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सिंगुलर फॉर्म वर्ब जो यहाँ पर क्यों यूज की गई है, क्योंकि यहाँ जो प्लूरल नाउन है वो डिनोट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को, एक स्पेसिफिक अमाउंट को, और उसको कंसीडर किया जा रहा है एक सिंगल बॉडी में। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि यह बैग क्या है, इस बैग की जो कीमत है वो 500 रुपये ज़्यादा है, तो सिर्फ 500 रुपये को एक बार में सिंगल बॉडी में लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रुपीज़ के अकॉर्डिंग नहीं, इसको सिंगल बॉडी में लिया गया है, इसलिए इसको सिंगुलर हम सब्जेक्ट मानेंगे और इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ किया गया है। इसी के रिगार्डिंग एक नोट भी लिखा है, इफ प्लूरल नाउन रेफर्स टू नंबर, अगर इसको इंडिविजुअल पीसेस में डिवाइड कर दिया जाए, इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। कैसे इंडिविजुअल पीसेस में डिवाइड किया है? 500 रुपी नोट्स आर केप्ट अंडर द मैट्रेस। जैसे एक नोट तो यहाँ पर बताया था 500 का, ठीक है, कि 500 रुपीज़ उसकी कीमत है, लेकिन यहाँ क्या बोला है? 500 के नोट, तो इसका मतलब यहाँ 5 नोटों की बात हो रही है। तो यहाँ पर नोट्स के अकॉर्डिंग हमने प्लूरल सब्जेक्ट इसको लेना है और इसके अकॉर्डिंग ही इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ओके, देन रूल नंबर 14, नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लेकिन प्लूरल मीनिंग है उसका। नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक्स अ प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, पीपल। पीपल में ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान आता है, नहीं, पीपल में बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसलिए पीपल हैव, पीपल के अकॉर्डिंग हमने लगाया हैव सच स्ट्रेंज आइडियाज। द पुलिस हैव कॉट द कल्प्रिट। रूल नंबर 15, व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद इनडेफिनेट नंबर, यहाँ मैंने बात की इनडेफिनेट नंबर सच एज अ नंबर,
a quarter, all, some, most, majority, both, 2/3, इसमें कुछ भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, कुछ भी इस तरह से एक्सेट्रा. एंड इट टेक्स ऑफ, ये स्टार्ट किससे हो रहा है? अ नंबर ऑफ, इन वर्ड्स से स्टार्ट हो रहा है और इसके साथ यूज कर रहे हैं हम ऑफ का. द वर्ब डिपेंड्स ऑन द नाउन, प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर ऑफ. अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से यूज किया जा रहा है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अ नंबर, ये स्टार्टिंग हुई, इसकी बिगनिंग हुई, इसके साथ हमने क्या लिखा है? ऑफ. इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें यूज किया हुआ है बर्ड्स. तो हमने यही किया ना कि हमने इस सब्जेक्ट को देखना है यहाँ पर, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यूज करनी है वर्ब. तो आप देख सकते हैं अ नंबर ऑफ बर्ड्स हैव डाइड ड्यू टू पॉल्यूशन. इट मीन्स इन दिस रूल क्या लिखा है इसमें? इफ द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर ऑफ इज सिंगुलर then the verb is singular, but if it is plural the verb is plural. And you can see in this sentence birds is a plural subject, then we use here plural verb. One more example is here, 2/3 of the project is already completed. तो आप यहाँ देखिए this is a singular subject, एक ही प्रोजेक्ट की बात हो रही है. Then according to this we use here singular verb. Next is both of them have pens of their own. Them plural subject, and according to this we use here have plural verb. Next is majority of the employees have university degrees, and same formula you will apply here, plural subject with plural verb. I hope you understand the rules and do practice. Okay, thank you so much.